Hello guys, how are you all? I hope you guys all are fine. And I'm Dr. Mona, and today I'm going to discuss about Charles Dickens. He's the second Victorian writers in our Victorian lecture series. Okay, so if you guys are facing any problem in the Victorian writers reading their works and summaries, you can guys follow this video lecture, and I hope and I promise that these lectures will be beneficial for you. And if you guys are preparing for any of the competitive exam like UGC NET exam and any kind of TET, Super TET, MP TET, UP TET, SET exams, you guys can follow these video lecture series, and you will be find yourselves at strong position. And exams may you will not skip any of the questions from English literature specifically. English literature section is the important section from all the competitive exam point of view because टीजीटी पीजीटी इंग्लिश में हम लोगों ने देखा ही है कि यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर सेक्शन से important questions बनते हैं. And if you guys are preparing for the government job, so you guys go through these Victorian writers and English literature section. And अगर आप MA English या BA English भी कर रहे हैं तो this video lecture series will be fruitful for you. So let's start our today's lecture. Okay. So as you can see on your screen that Charles Dickens, most important and most famous Victorian writer after Alfred Lord Tennyson. And this will be short and sweet biography of Charles Dickens. Let's move on to next slide. As you can see on your screen that he was born on 7th Feb 1812 and he died on 9th June 1870 in the Victorian era period, and he was the favorite of the Queen Victoria. Move on to next slide. Next slide is showing the works written by him, and the first and foremost work, the Pickwick Papers, written in 1836 by him, and he got huge success from this work. And just a moment. Yeah. So he got huge success from this work. The Pickwick Papers was published in 1836, but sometimes in some competitive exams it is show आपके ऑप्शंस में क्या देगा ये 1836 जो डेट है समटाइम्स 1836 नहीं हम लोगों को क्या देता है ये 1837 देता है. तो कीप दिस थिंग्स इन योर माइंड रिमेंबर. एंड इसका एक मोस्ट फेमस कैरेक्टर है सैम वेलर. डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है सैम वेलर कैरेक्टर किससे एसोसिएट है? चार्ल्स डिकेंस से एसोसिएट है. विच नोवेल में अपीयर होता है? 1836 में द पिकविक पेपर्स में अपीयर है. और एपिसोड इन विच एपिसोड? फोर्थ एपिसोड. ओके, सो keep this thing in your mind. Next important work, Oliver Twist. Oliver Twist. It is the most important work published in 1837. एंड ओलिवर ट्विस्ट से बहुत सारे क्वेट्स पूछे जाते हैं, इसके कैरेक्टर पूछे जाते हैं, समरीज पूछे जाती है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स. सो यू हैव टू go through this summary. Okay. Nicholas Nickleby 1839 again very important. Old Curiosity Shop 1841 में रिटर्न है. इसका कैरेक्टर है नेल. 12 ईयर ओल्ड गर्ल है जो अपने ग्रैंडफादर के साथ में रहती है और इनके भाई का कुछ प्रॉपर्टी को लेके इशू रहता है. उसी पूरी यहाँ पे स्टोरी है डिस्क्राइब की इन्होंने. तो डायरेक्ट एग्जाम में यूजीसी नेट एग्जाम में क्वेश्चन देखा है. आई हैव सीन द क्वेश्चन इन यूजीसी नेट एग्जाम दैट यहाँ पर क्या है डायरेक्ट नेल द कैरेक्टर नेल appear in which novel? So it is the character of the Old Curiosity Shop published in 1841. Barnarouche
Important है, go through this summary. A Christmas Carol. क्रिसमस कैरोल मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है, 1843 में रिटर्न है और इससे कुछ टर्म्स जो है बहुत ज़्यादा पब्लिश हो गए थे, बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, जैसे स्क्रूज जो टर्म है, स्क्रूज जो हम लोग का कैरेक्टर रहता है इसमें, टाइनी, टिम, इस टाइप के टर्म्स यहाँ से बहुत फेमस हुए थे और ये वर्क जो है पूरा यहाँ पे स्क्रूज जो हमारा कैरेक्टर रहता है, क्रिसमस की प्रीवियस नाइट पर उसको एक इस टाइप का ड्रीम आता है कि उसका जो फेलो बिजनेसमैन जो फेलो उसका बिजनेस पार्टनर जो रहता है वो उसकी डेथ हो चुकी है और वो वहाँ पे अपना साथ में पूरा लगे पूरा बैगेज लेके घूम रहा है सोने गोल्ड कॉइन्स का तो वहाँ पे वो पूरा उसको शो किया गया है कि पूरी लाइफ में आप कितना भी पैसा कमा लो ये सब आपके लिए वर्थ नहीं करता, बल्कि इंस्टेड ऑफ दिस आप क्या करो, अच्छे काम करो, दूसरों के लोगों की के वेल विशर बनो, उनके लिए अच्छी गुड थिंग्स करो, सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो यहाँ पे पूरे इनके टर्म्स जो है टाइनी टाइम स्क्रूज ये सब ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, यूजीसी नेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। मार्टिन चजलविड 1844, okay, go through the summary. The Chimes 1844, go through the summary. The Krypton on the Earth, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। द बैटल ऑफ द लाइफ स्किप कर सकते हैं। डॉम्बे एंड सन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द इंपॉर्टेंट इवेंट्स कैरेक्टर्स, गो थ्रू द समरी। द हॉन्टेड मैन डेविड कॉपरफील्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेविड कॉपरफील्ड की स्टार्टिंग लाइन्स, कैरेक्टर्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, गो थ्रू द समरी, पूरी समरी पढ़िए और अगर if you are facing any problem you can guys suggest me and message me, leave a comment in the comment section, so I will provide you the individual summaries of all these works, okay। ब्लेक हाउस इंपॉर्टेंट वर्क है, 1853 में अपीयर हुआ है। इसके बारे में एक बहुत फेमस इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ब्लेक हाउस को जब जोसेफ कॉनराड ने पढ़ा था, सो उन्होंने खुद का अपना चाइल्डहुड जो है वो उसमें डिस्क्राइब ऐसे उनको ऐसा फील हुआ था कि उनका खुद का चाइल्डहुड इस ब्लेक हाउस में शो हो रहा है, ठीक है। हार्ड टाइम्स अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, इसके कैरेक्टर्स इम्पॉर्टेंट इवेंट्स सब कुछ, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। तो चार्ल्स डिकेंस का अगर देखा जाए, चार्ल्स डिकेंस के जो पूरे वर्क्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सभी वर्क से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिटिल टॉरेट में अभी यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया था लिटिल टॉरेट से। अ टेल ऑफ टू सिटीज से यूजीसी नेट एग्जाम, केबीएस में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। ग्रेट एक्सपेक्टेशन से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। समरी पढ़िए ही पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, एनालाइज करिए, थीम्स को एनालाइज करिए, ओके। वन म्यूचुअल फ्रेंड, एडविन ड्रूड, इनमें से हम ये जितने वर्क्स मैंने हाईलाइट किए ये सभी वर्क्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स है। मैंने कितने वर्क्स आपको यहाँ पे स्किप किए, सिर्फ 4 वर्क्स है जो स्किप कर दिए हैं, बट उनको भी अगर आप पढ़ सकते हो तो जाके पढ़िए, समरीज पढ़िए, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, इवेंट्स, इन सबको नोट डाउन करिए और लिखिए। और अगर नहीं आपको पढ़ने में आ रहा है, आपको समटाइम्स वी फील बोर while reading the summaries, so you can go through the online video lectures and you will be benefited by these lectures, okay। and चार्ल्स डिकेंस ने बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स दी हैं, इतने इंपॉर्टेंट विक्टोरियन राइटर थे ये, इनके बारे में बहुत सारे स्टेटमेंट पास ऑन किए गए हैं। हेनरी जेम्स, वर्जीनिया वुल्फ, हम लोग आगे की स्लाइड में इनको देखने वाले हैं। तो इतने इंपॉर्टेंट राइटर, विलियम मैकपीस थैकरे से तो इनका इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्शन रहता था कि विलियम ये इंपॉर्टेंट विक्टोरियन राइटर्स कहे जाते थे और विलियम मैकपीस थैकरे से इनका कॉन्फ्लिक्शन रहा था और गैरिक क्लब्स के ये जो मेंबर बने थे तब वहाँ पर भी इनका कॉन्फ्लिक्शन रहता। विलियम मैकपीस थैकरे इनको इतना इंपॉर्टेंट कंसिडर नहीं करते थे और इनके जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क्स है, डेविड कॉपरफील्ड, ऑलिवर ट्विस्ट, इन सब में सोशल क्रिटिसिज्म और क्लास डिवीजन को अगेन शो किया गया है। क्लास डिवीजन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इट इज द रियली वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द विक्टोरियन एरा because I already told you that Victorian era was the era of scientific development, but along with the scientific development it was the era of the class division also, and class division पर कार्ल मार्क्स ने अपनी बुक लिखी है, उस पूरी बुक्स में उन्होंने एक्सप्लेन किया है क्लास डिवीजन को। यहाँ पर हम लोगों का पूरा सोसाइटी का मिरर रिप्रेजेंट कर दिया है कार्ल मार्क्स ने, और यहाँ पर चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स में भी हम लोग यहाँ पर क्लास डिवीजन को देख सकते हैं।
सोशल क्रिटिसिज्म यहाँ पे क्लियरली शो होता है। ओके, और इनका जो खुद का जो चाइल्डहुड है ना, इनका चार्ल्स डिकेंस का चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा मिज़रेबल रहा था। जब ये 12 ईयर ओल्ड थे ना, व्हेन ही वाज़ ओनली 12 ईयर ओल्ड, इनके फादर जो है मार्शलेज़ा प्रिज़न में चले गए थे, जो कि एक डेप्थ्स प्रिज़न थी। अब डेप्थ्स प्रिज़न में गए ये तो उसका रीज़न ये था कि ये कर्ज़े में डूब गए थे, नेवी मर्चेंट थे वैसे तो ये, बट इन्होंने बहुत ज़्यादा डेब्ट्स में डूब गए थे, इंसॉल्वेंसी की पोज़ीशन में आ गए थे ये। बट इंसॉल्वेंसी पोज़ीशन में आने के बाद भी ये डेब्टर्स मार्शलेज़ा प्रिज़न में गए और ड्यूरिंग uh, in his Marshalls prison, Charles Dickens worked in the shoe factory. Okay, एंड चार्ल्स डिकेंस ने शू फैक्ट्री में वर्क किया पूरे 4 इयर्स तक एंड 1816 में जब इनके फादर प्रिजन से रिलीज हुए तब चार्ल्स डिकेंस ने रिजॉइन किया अपने स्कूल्स को। तो यहाँ पे इनका चाइल्डहुड भी मिजरेबल रहा है और वही चाइल्डहुड का इम्पैक्ट इनके नॉवेल्स में भी, इनके वर्क्स में हम लोग देख सकते हैं। और इसके साथ में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट से ही इन्होंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स भी दी हैं, वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। एंड इनके बारे में एक और जो चीज़ कही जाती है वो ये है कि इनके जितने भी हम लोग वर्क्स देखते हैं, ये वर्क्स इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनकी लाइफ टाइम में हो गए थे बिकॉज़ इन्होंने पूरी सोसाइटी का एक मिरर जो है वो अपने वर्क्स में रिप्रेजेंट कर दिया था। और इनके जो फेलो राइटर्स हैं वो मे बी इनसे जेलस होंगे मे बी, तो दे पास ऑन द कमेंट्स ऑन हिम एंड उनको लाइक नहीं करते थे उतने ज़्यादा, उनके पॉजिटिव कमेंट्स चार्ल्स डिकेंस को बहुत ही रेयर मिले हुए हैं। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। He worked in shoe polishing factory as I told you, okay, at the age of 12. Impressed with Tobias Smollett and Henry Fielding. टॉबियस स्मॉलेट और हेनरी फील्डिंग के नॉवेल्स को ये बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, ठीक है। एंड ही रीड द अरबियन नाइट्स एंड फार्सेस ऑफ एलिजाबेथ इंच बैलेट ऑल्सो। Marshalls prison, as I told you, that plays important role in his life. नेक्स्ट है बायोग्राफर, इनके बायोग्राफर का नाम याद रखेंगे हम लोग, सिमोन लॉ। सिमोन लॉ जो है क्या है, इनके बायोग्राफर है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेंबर ऑफ गैरी क्लब एट द एज ऑफ 20, यहाँ पे विलियम मैकपीस थेकर से इनके क्या रहे थे, कॉन्फ्लिक्शन रहे थे और इतने ज़्यादा इनके कॉन्फ्लिक्शंस रेज हो गए थे इस टाइम पर कि कमेटी मेंबर्स को खुद आगे आना पड़ा था इनके कॉन्फ्लिक्शंस को रिजॉल्व करने के लिए। इनकी मैगजीन थी मॉर्निंग क्रॉनिकल, इसमें इन्होंने वर्क किया था। डेली न्यूज़ के एडिटर इन्होंने रहे थे 1845 में एंड टोटल 10 चिल्ड्रन थे इनके। नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ही ज्वाइंड ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग इंडियन म्यूटिनी 1857। इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोगों के यहाँ इंडिया में जब इंडियन म्यूटिनी हो रही थी, हमारे फ्रीडम फाइटर्स इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए म्यूटिनी कर रहे थे 1857, यहाँ पे कमिटीज बिठाई जा रही थी, वहां उस टाइम पे इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन किया था और उसको सर्व किया था। ही डाइवोर्स्ड हिज वाइफ कैथरीन, हिज फर्स्ट वाइफ नेम इज कैथरीन, बिकॉज he loved Ellen Theron. Ellen Theron, she is the personality, she is the woman जिनकी वजह से मैं विलियम मैकपीस थेकरे से इनके कॉन्फ्लिक्शन हुए थे। ओके, एंड नेक्स्ट, ड्यूरिंग हिज विजिट टू यूएसए ही बिकम फ्रेंड्स टू एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो एंड राल्फ वाल्डो इमर्सन। राल्फ वाल्डो इमर्सन मोस्ट इम्पोर्टेंट अमेरिकन पर्सनालिटी है। इन्होंने ट्रांसरेशियलिज्म जो मूवमेंट है वो भी दिया था, ठीक है। फी बेटा कप्पा सोसाइटी से एसोसिएट रहे थे ये। टी एस एलियट के साथ में इन्होंने, टी एस एलियट भी मोस्ट इम्पोर्टेंट अमेरिकन पर्सनालिटी है। सो राल्फ वाल्डो इमर्सन को वी कांट स्किप, वी विल डिस्कस इट लेटर इन द इंडिविजुअल वीडियो, ओके। एंड एज आई टोल्ड यू दैट term cliffhanger, given by Charles Dickens. Move on to next slide. Other important points are there. William Wordsworth thought him very talkative and vulgar young person. As I told you in the earlier slide, that some fellow writers pass on some statement. Okay, so this is the negative statement. William Wordsworth also very famous writer, but he didn't like Charles Dickens, and he pass on the statement that he is very talkative and vulgar young person. Okay, George Meredith find him intellectually lacking. मतलब intellectually lacking आप लोगों को मीनिंग पता ही होगा। intellectually lacking मीन्स दिमाग कम है भाई सामने वाले में।
Henry James called his novels loose, baggy monster because, according to him, he couldn't represent his character's psychologically depth and he denied his premier position as writer. चार्ल्स डिकेंस को मोस्ट इम्पॉर्टेंट विक्टोरियन राइटर कंसिडर किया गया है। इनके वर्क्स को बहुत ज़्यादा ह्यूज सक्सेस मिली है। बट हेनरी जेम्स ने इनके नॉवेल्स को क्या कहा था? लूज बैगी मॉन्स्टर्स। लूज बैगी मॉन्स्टर्स, important point. I have seen a question in the UGC NET exams that who called novels loose baggy monsters? Henry James called novels loose baggy monster, but whose novel? चार्ल्स डिकेंस नॉवेल्स। बिकॉज इनका कहना था कि इनके कैरेक्टर्स को ये साइकोलॉजिकली डीपली प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं और इन्होंने इनकी जो पोजीशन राइटर की इनको पोजीशन मिली थी ना, प्रीमियर राइटर इनको कंसीडर किया जाता था, इस पोजीशन को भी इन्होंने डिनाइड कर दिया था। Joseph Conrad, as I told you earlier, that Joseph Conrad described his own childhood in Bleak House. Bleak House most important work है। वर्जीनिया वुल्फ ने भी कम नहीं थी, इन्होंने पास किया नेगेटिव कमेंट और इनकी नॉवेल्स को मैस्मराइजिंग कंसीडर किया। विलियम मैकपीस थैकरे से इनके कॉन्फ्लिक्शन रहते ही थे और इनकी बुक क्रिसमस कैरल को विलियम मैकपीस थैकरे ने क्या कहा था? इट इज अ नेशनल बेनिफिट एंड टू एवरी मैन एंड वुमन हु रीड इट फॉर पर्सनल काइंडनेस। ये सो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आर showing, those are showing on your screen and I highlighted these points already. These points are really very important. Direct one day exams में question raise हो सकते हैं, so you guys can keep remember this point. Okay, and I think our lecture is done and it is done for today, and I will catch you guys tomorrow in the new video lecture. Till then, keep learning and keep watching my videos. Okay, bye bye.